Group 17, which is called halogen family because it is salt forming element. What is the general configuration? NS2NP5. Okay, the general configuration is NS2NP5. So you know fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. What is the configuration? 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5. But there is a intervening of what orbital? D orbital, and there is also 4d orbital. Okay, and okay. So already we have discussed. Okay. Okay. And this is this halogen group 17, all elements are non-metals. एक इसमें एक common है कि all elements are non-metals and all are diatomic. सबको you know fluorine क्या होता है? F2 Cl2 Br2 I2. So all elements are non-metals and all are diatomics. Okay, now the color. What is the color of, and this family, all elements impart color. All element gases when released, they are colored gas. They say fluorine. What is the color of fluorine gas? Pale yellow. What is the color of chlorine gas? Greenish yellow. What is the color of bromine? All of you know it is reddish brown vapor. Iodine, violet vapor. So halogen family, all elements are colored gas. Pale yellow, greenish yellow, reddish brown, violet vapor. Now the question arises कि why group 17 elements are colored? Why they impart the color? So you can see the physical properties, all are diatomic, all are gases, all are colored. Fluorine, chlorine are gas, bromine is liquid, iodine is solid. Okay. Why it changes from gas to liquid to solid? Because of increase of atomic size and increase of van der Waals interaction. Okay. So this is the reason कि they impart the color. सबसे इंपॉर्टेंट ये कलर वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना. Why halogens are colored? Halogens are colored due to absorption of visible light from their molecules, resulting in excitation of outermost electron to higher energy. ठीक है, इतना भी तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो सिंपल तुम समझ जाओ कि ये तुम्हारे हैलोजन फैमिली ही कलर्ड क्यों होते हैं. ऑक्सीजन कलरलेस था, बट यहाँ पे सारे कलर्ड हैं. मेन रीजन है कि इनके पास फ्लोरीन, जितने भी तुम्हारे ये एलिमेंट्स इस ग्रुप के होते हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 7 होता है. ओके, बेटर यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन. इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP5. फिर P वाला देख लो. 1 2 3 4 5. देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. और जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बहुत इजीली एक्साइटेड स्टेट में जाता है. और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो कलर इम्पार्ट करता है. तो क्या हम कह सकते हैं? हैलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन easily get excited by absorbing certain frequency of light and hence impart the color. समझ आया बच्चे? नहीं? So now this is clear why the color become depend down the group. Why halogens Yes, impart? ma'am. क्लियर हो गया ना? ठीक है. तो halogens impart color because of one unpaired electron, so which easily get excited and hence it impart the complementary color. Now the color depend down the group from fluorine to iodine because of increase of size, so decrease of excitation energy absorption. Okay. Now bond dissociation energy already we have discussed कि fluorine, chlorine, bromine. Okay, who will say why order is this? बस तो दिख गया. सबसे पहले कौन ब्रेक करेगा? I2. सबसे लो बॉन्ड डिसोसिएशन I2 की हो गई, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन. सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन किसकी होनी चाहिए थी? क्लोरीन की. सबसे लो तो तुम्हें आयोडीन दिख रहा है, दैट इज करेक्ट बिकॉज ऑफ लार्ज साइज द लार्ज बॉन्ड लेंथ, सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. उसके बाद क्या दिख रहा है तुम्हें? ब्रोमीन, देन क्लोरीन. सबसे हाई फ्लोरीन की होनी चाहिए थी ना, बट ऐसा नहीं है. फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी हाई, बट इट इज लेस देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. सिर्फ आयोडीन से ज्यादा है, बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि व्हाई फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉलर देन क्लोरीन? बिकॉज ऑफ, क्यों? इसका क्या रीजन है? इसका साइज छोटा है ना,
साइज छोटा होने की वजह से जो फ्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर में क्या हो जाता है, रिपल्शन। तो सिंपल क्या लिख सकते हो कि फ्लोरीन हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, द लोन पेयर रिपल्शन अकर। जहां पे रिपल्शन होता है वो बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, दैट मीन्स लो, इजिली ब्रेक हो जाता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। The fluorine bond dissociation energy is smaller than chlorine because of large electronic repulsion between lone pairs due to very small size of fluorine. Is it clear to all of you? Fluorine has low bond Yes, dissociation ma'am. energy because of its small size. The lone pair repulsion occur. इनके बीच में रिपल्शन हो जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है. सो वी कैन से कि फ्लोरीन हैज लो बॉन्ड. एंड यही फ्लोरीन का एक होता है कि फ्लोरीन इज क्वाइट रिएक्टिव. व्हाई फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव? क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, इसी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से फ्लोरीन के बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, नाउ एटॉमिक साइज नो नीड टू डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलरेडी यू नो, अदरवाइज वंस अगेन यू कैन रीड इट. मेल्टिंग पॉइंट, बॉल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, दिस एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ऑक्सीडाइजिंग पावर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल डिस्कस. ठीक है, अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि वाई. अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है कि हैलोजेंस आर ऑल हैलोजेंस इवन. Why fluorine is better oxidizing agent than chlorine although its electron affinity is less than chlorine? क्या आंसर लिखोगे? Because fluorine has low bond dissociation energy and also F minus has high hydration enthalpy, and this is because of small size of fluorine. एंड थर्ड एक और पॉइंट लिख सकते हो, एंड ऑल्सो फ्लोरीन ई नॉट वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव. 3 पॉइंट्स, 3 वर्ड्स लिख दो एग्जाम में, फुल मार्क में. नहीं, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता है. वाई फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू. Why low bond dissociation energy and high hydration enthalpy? Because of small size. ई नॉट जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, जो तुम्हारी फ्लोरीन फैमिली है उसकी ई नॉट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है. ठीक है, अब ये ई नॉट किस पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, X2 की जगह मैं फ्लोरीन ले लेती हूँ. कोई भी तुम्हारा हैलोजन होता है, X2 ले लो या F2 ले लो. हैलोजन जो तुम्हारा होता है डायटोमिक होता है. सबसे पहले हम इसकी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. फर्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि अपने एटम में टूट जाता है. ठीक है, सॉरी, एटम में टूट जाता है. हाफ ले लो, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. इसके बाद सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो कि नेगेटिव होता है. इसके बाद होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी जो कि नेगेटिव होता है. ठीक है, और इन तीनों को जब सम करते हो दैट इज कॉल्ड ई नॉट वैल्यू. द ई नॉट वैल्यू इज द सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. इवन अगर तुम ब्रोमीन लेते हो तो वहां पे एक और एनर्जी ऐड हो जाता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के पहले एक आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के सम से ई नॉट वैल्यू आता है. अब तुम देख सकते हो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसकी लो होती है, और ये हाई होता है. ठीक है, और यही रीजन है कि चूंकि ये इसका लो है, ये हाई है, तो इसको ये ओवर पावर कर जाते हैं और इसकी ई नॉट वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो जाता है. तुम देख सकते हो इसकी ई नॉट वैल्यू. फ्लोरीन का जो ई नॉट वैल्यू है दैट इज, फ्लोरीन ई नॉट वैल्यू इज 2.87. देखो, द फ्लोरीन ई नॉट वैल्यू इज प्लस 2.87. देखो कितना ज्यादा है, ये प्लस 2.87 है,
क्लोरीन का थोड़ा कम पॉजिटिव है, ब्रोमीन का और भी कम पॉजिटिव है, और आयोडीन का काफी कम पॉजिटिव है। तो हाईली पॉजिटिव कौन है? ये है। तो ई नॉट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यही रीजन है। तो जब भी अगर आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, देन यू कैन से this oxidizing character order depends on the E naught value, and the value E naught is this। ठीक है, देख सकते हो। तो यही रीजन है कि ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर भी है और रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर सेम है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए बाकी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे ये एग्जाम में रिएक्शन के फॉर्म में कैसे आता है, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद Cl माइनस। आपको पता फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन को इसके कंपाउंड से डिस्प्ले करके इसको एलिमेंटल में चेंज कर देगा खुद F माइनस में। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद I माइनस, तो क्या बनेगा? I2 प्लस F माइनस। तो चूंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन एंड I माइनस, व्हाट विल गेट इट? I2 प्लस Cl माइनस। क्लोरीन प्लस F माइनस क्या बनेगा बच्चे बताओ?